Hello students, welcome to the English classes for classes 11th. I am Mrs. Sangeeta Saxena and today is going to be our last turn for the chapter Discovering Tut. The saga continues. This is the third chapter of your main reader. So, and also there's one thing to tell that in around the last of the month, like at around 29th or 30th August, we'll be giving you the date sheets, and then there'll be class tests that will take place on either Zoom or Google Classrooms. The exact performer I'll be providing you within some days. So please be regular to these classes, and please listen to everything that we say, and be prepared for the test. So let's get started. In the last time we did till the part where we got to know that Tut was put inside the CT scanner, and how the CT scanner took around 1700 x-rays of his body and then combined it to form a 3D hologram or 3D projection of the same. So let's see what happens now. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic stair in no, on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted from an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. So now what happens, that now Tut was being carried to the CT scanner. This is the scenario of the night of the scan. जिस दिन रात में टट को उनको CT स्कैन के लिए लेके जाना था, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. So जब उसको निकालना था तो उन्होंने जो इनके वर्कमैन थे, पहले वो एक रैम्प पे चले. रैम्प का मतलब होता है एक स्टेज काइंड ऑफ थिंग होती है जो कि वुड की बनी होती है. तो पहले वो उस रैम्प पे चले, उसके बाद उन्होंने एक स्टेयर केस लिया जिससे कि वो लोग टट को लेकर के जा रहे थे. हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या करा, दे रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. उसके बाद दे रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसके बाद वो वहाँ से एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़े. एक लिफ्ट होती है, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं, वो वाटर प्रेशर से चलती है. आई गेस आप पढ़ेंगे अभी इसको अपने क्लासेस में, फिजिक्स के क्लासेस में. सो दे रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट पर ले गए जिसके ऊपर की वो रखी हुई थी, आपकी CT स्कैनर मशीन रखी हुई थी. तो ये जो जहाँ पे ये फ़ैरोज़ हैं इजिप्ट के, वहाँ इजिप्ट में, वहाँ पे सैंड बहुत है. ठीक है, वो मतलब पूरा डिज़र्ट एरिया है. तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब काफ़ी, ये पूरा अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा था. तो वहाँ पे पहले एक रैम्प पे चढ़े, देन देयर वाज अ स्टेयरकेस. उसके बाद ये लोग एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे CT स्कैनर रखा हुआ था, वहाँ पे उसको लेके गए. 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज्ड स्प्रिंटेड फ्रॉम एन ऑफिस नियर बाई. तो 20 मिनट के बाद ना दो आदमी जो बगल में वो ऑफिस था वहाँ से भागते हुए आए प्लास्टिक फैंस के साथ, क्योंकि जो वो स्कैनर मशीन थी वो रुक गई थी क्योंकि उसके कूलर फैन में सैंड फंस गया था. सो व्हाट हैपन्स कि पहले लोग लेके जाते हैं, एंड आफ्टर 20 मिनट्स वो लोग वहाँ पे दो आदमी प्लास्टिक फैंस लेके आते हैं, क्योंकि जो उनकी सैंड मशीन है, CT स्कैनर मशीन है, उसमें सैंड चली गई है. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked the guard nervously. So there is one thing also famous about the pharaohs. is Egyptian के बारे में एक कर्स फेमस है, जो कर्स ऑफ द pharaohs कहते हैं, कि अगर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करेगा तो दैट कर्स माइट फॉल अपॉन हिम, कि मतलब उनको या तो बहुत ही ज़्यादा मिसफॉर्च्यून होगी या तो उनको डेथ कॉज भी हो सकता है. दिस इज नोन एज द कर्स ऑफ pharaohs. तो वहाँ पे एक गार्ड ने नर्वसली ये बोला कि ओहो दिस इज द कर्स ऑफ द pharaohs, तभी ये आपकी CT स्कैनर मशीन नहीं चल रही है. Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data has been lost, the technicians turned
Tut over to the workmen who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. So what happens, जब वो एक फैन खराब हो गया, लेकिन जो सब्सटीट्यूशन फैंस थे, जो उनके पास एक्स्ट्रा फैंस थे, उसने बहुत ही आराम से ढंग से काम करा और उनको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करा और उनका कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ था, कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ था उन लोगों का. सो देन व्हाट हैपन्स कि 3 घंटे के अंदर अंदर ही, बल्कि 3 घंटे से कम टाइम में, वो जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने वापस से टट को दे दिया वर्कमैन को, जो कि उनको फिर से उसी टोम में ले गए जहाँ पर कि फ्यूनररी प्रीस्ट ने, मतलब जहाँ पे जो भी उस टाइम के प्रीस्ट होंगे, उन्होंने उसको दफनाते हुए रखा था. ठीक है. सो बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. Neck vertebrae appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the rib cage, and a transection of the skull. But for now, the pressure was off. Sitting back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly relieved that nothing has gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. So क्या होता है कि जो टेक्नीशियंस होते हैं, अब वो ना टट की इमेजेस निकाल रहे हैं, अस्टोनिशिंग मतलब सरप्राइजिंग इमेजेस निकाल रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. A grey head took shape from a स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स. तो उनको एक ग्रे हेड दिखता है और क्या कहते हैं, द टेक्नीशियंस स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन. तो टेक्नीशियंस ने जब वो ग्रे हेड देखा तो उसको उन्होंने हर डायरेक्शन में टिल्ट कर करके गोल गोल घुमाया. हाँ, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास. तो जो नेक की हड्डी होती है, नेक के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी उन्हें इतनी क्लियरली दिखाई पड़ी जैसे कि एक एनाटॉमी क्लास में दिखाई पड़ती है. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, मतलब अलग इमेजेस में उनको हैंड मिले, रिब केज मिला, ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल मिला. एंड नाउ द प्रेशर वाज ऑफ. ठीक है, तो अब जो प्रेशर था इन लोगों पे वो ख़त्म हो गया था. जही हवास, जो कि जो इसके सुपरविजन में सारा काम हो रहा था, जही हवास था वो अपने सीट पे बैठे बैठे रिलीफ से स्माइल करता है और कहता है कि आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट. वो कहता है अच्छा हुआ कि सब कुछ ये आराम से हो गया, रात में सोया ही नहीं हूँ एक सेकंड के लिए भी. आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. मैं इतना परेशान था, मैं इतना डरा हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है मैं जाके सो जाऊंगा. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, descending metal stairs to the sandy grounds, the wind had stopped. The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. Just above the entrance of Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egypts knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. So now this is the ending of the chapter, and they say that by the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy grounds, the wind had stopped. तो वो कहते हैं कि अब जब हम वो जो जहाँ पे ट्रेलर था, वो जब हम जैसे ही छोड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम जब स्टेयर केस से नीचे उतर रहे थे तो जो विंड चलना स्टार्ट हुई थी वो विंड चलना रुक चुकी हैं. हाँ, और अब इस टाइम पे जो विंड है वो एकदम स्टिल हो चुकी है, लाइक डेथ इटसेल्फ. तो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा शांत है कि जैसे कि मतलब डेथ की तरह हो, जैसे कि डेथ शांत होती है, एकदम उस तरीके का शांत एटमॉस्फेयर हो चुका है. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड. सो द वैली इन विच दे वर, उसको वो लोग द वैली ऑफ द डिपार्टेड कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे इजिप्शियंस को गाड़ा गया है. ओके, जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टट्स टूम स्टूड ओरायन. ना ओरायन इज अ कॉन्स्टेलेशन. जो आप लोगों को कॉन्स्टेलेशंस के बारे में पढ़ाया गया होगा कि स्टार के ग्रुप्स होते हैं कॉन्स्टेलेशंस. तो वो कहते हैं कि जस्ट अबव टट्स एंट्रेंस, टट्स टूम्स एंट्रेंस, की मतलब जो उसका टट का टूम था उसके एंट्रेंस के जस्ट ऊपर ओरायन खड़ा हुआ था. और ओरायन को एंशियंट इजिप्शियंस जो होते हैं दैट इज नोन एज द सोल ऑफ ओसिरिस, वो सोल ऑफ ओसिरिस मानते थे. वो कहते थे कि ओरायन जो है वो ओसिरिस की आत्मा है जो कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ कहलाया जाता है. ठीक है, तो जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, टट के टूम के ऊपर ओरायन है जो कि सोल है गॉड ओसिरिस की, एंड ओसिरिस इज द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. सो नाउ द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ इज वॉचिंग ओवर द बॉय किंग. तो वो कहते हैं कि ये
जो ओसिरिस है गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, ये अब तट के ऊपर नज़र रखा हुआ है, इसने इसकी प्यार से मतलब सारी देख रेख करी है. So this was the ending of this chapter, students, and as I told you that you should have made notes of it. So अभी भी लेकिन आपके पास सारी YouTube videos हैं. If you haven't made notes of this chapter, then you should go through all those videos again and make notes of the chapter. And at around 30th of August, we will be giving you these schedules, or maybe before 30th of August, and then the exams are going to be held, or maybe class tests. I will be giving you the accurate information in the next class. In the next class also, I will be providing you with the question answers of this very chapter. So the next turn is going to be the exercises session. So I'll be providing you with all these informations as well as the exercises of the same. So that's all for today. Have a nice day.